بہادر ہے کون؟ میر مرجان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی لیے تو آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا ابھی تک. لیکن اگر آپ سپورٹ کر دیں اور میر مرجان گرفتار ہو جائے تو ہمارا بزنس گراف کہاں جائے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنی اولاد کو میری برابری میں لانے کے لیے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن بھی اس بڑی یونیورسٹی میں کرا دیا جہاں میں نے غزل کا ایڈمیشن کروایا تھا. جب میں آپ کی زندگی میں آئی تو آپ کونسلر تھے، مگر آپ جس عورت کے عشق میں مبتلا تھے وہ آپ کو کونسلر بھی نہ رہنے دیتی. اس رستے پر مت جانا جو رستہ سیاستدان نور بہادر کے بیٹے کی طرف جاتا ہے. ابو میری تو بس سلام دعا ہے سیوی سے. غزل تو بس آپ کو پتہ ہی ہے رائے کا پہاڑ بنا دیتی ہے ہر بات کا. اگر اس پہاڑ کو بارود بن کے اس نے اڑا دیا تو مکان کا بٹوارا اگر تمہاری وجہ سے ہوا نا تو تمہارے بھائی شکیل اور شمیر تمہیں بہت ذلیل کریں گے. اور پھر ویسے بھی بیٹا آدھے مکان میں ہمارا گزارا ہو نہیں سکتا. اچھا ابو آپ بے فکر رہیں، میری بس سلام دعا ہے اس کے ساتھ، میں وہ بھی چھوڑ دوں گی. بس آپ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان نہ ہو. اچھا چائے پئیں گے؟ میں چائے بنا کے لاتی ہوں ابو کے لیے. ٹھیک ہے ابو؟ فیمس فلم سٹار پارس خان. کرنا پڑے گا اس کا کچھ. ہیلو، کیا حال ہے تیرا؟ اچھا برو، ایک بات تو بتا، وہ تیرے پاس فلم سٹار پارس خان کا نمبر ہے؟ کشمالہ کی کال. ہیلو میری جان. ہیلو پارس جانی، تو مجھے یہ بتا تیرا لاہور والا فلیٹ خالی ہے؟ ہاں مگر کیوں؟ چل ٹھیک ہے، تو ایسے کر ادا سعید کے ایڈریس پر چابیاں کوریئر کروا دے. وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ابھی بتانے کا ٹائم نہیں، بعد میں بتاؤں. اوکے میں جا رہی ہوں، بائے. ہیلو آصف، میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں اور لاؤنج کی باسکٹ میں ایک کیز پڑی ہوئی ہے، وہ اس ایڈریس پر کوریئر کروا دو. اوکے بائے. ہیلو. ہائی، از دس پارس؟ یس، ہوز دیر؟ میں ڈائریکٹر شعیب بٹ بات کر رہا ہوں. نام تو سنا ہی ہوگا. نو، بٹ کہیے. مجھے اپنی نئی فلم کے لیے نئے چہروں کی ضرورت تھی. آپ کا سانگ دیکھا تھا، I was quite impressed. تھینکس. آپ کی اپنی فلم ہے؟ دیکھیں فلم جس کی بھی ہو، آپ کو بجٹ کی ٹینشن نہیں ہوگی. ایکسکیوز می؟ آخر مشہور سیاستدان نور بہادر کا چھوٹا بیٹا زین پروڈیوس کر رہے ہیں. I'm sorry, I'm not interested. What? وہ کیوں؟ I don't like Noor Bahadur. And even I don't like Zain Bahadur. بہت ہی چھچھورا سا ہے وہ. What do you mean? ایک پارٹی پر ملی تھی، بہت شو آف کرتا ہے اور اس کے دوست بھی نہایت عجیب ہیں. Okay. As you wish. جیسا تم کو. اوکے. کاٹ دیا.
अच्छा, इसका ये रहने और खाने का अरेंजमेंट कर देना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। आई एम सॉरी मामा, लेट हो गया। बेटा कहाँ रह गए थे? मैंने इतने फोन कॉल्स किए। एक तो मामा मुझे समझ में नहीं आती कि रियाज किन ख्यालों में गाड़ी चलाता है। एक बेचारा छोटी सी बिल्ली के बच्चे को गाड़ी के नीचे दे दिया। तो कॉल कर देते। तुम्हें पता है ना कि मुझे सख्त चिढ़ होती है उन लोगों पे। तुम जानते हो ना, डिप्रेशन की वजह से मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो फिर क्या करता मामा? उस बेचारी बिल्ली को छोड़ तो सकता नहीं था, इसलिए वेट के पास ले गया। रियाज को रक्षे के पैसे देके बिल्ली को उसके हैंड ओवर कर देते, और तुम्हें चाहिए था कि तुम सीधा घर आते। मुझे नहीं पता कि फोन ना करने की ऐसी कौन सी वजह थी। अरे मामा, अगर आपका फोन अटेंड करता तो आप ये सारी बातें मुझे फोन पर करती और फोर्स करती कि जल्दी घर आओ। और अगर मैं उस बिल्ली के बच्चे को छोड़ आता इस तरह तो मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता। अच्छा, तो खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए मुझे डिप्रेशन में मुब्तला किया। अरे मामा, अगर मैं उसको इस तरह छोड़ आता तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता, और अगर मैं गिल्टी फील करता तो डिप्रेशन में चला जाता, जिसकी वजह से मेरा बीपी लो हो जाता है, जिस तरह आपका बीपी हाई हो जाता है। हम देखें ना, मैं आ गया। सो चेयर अप प्लीज। बेटा सैवी, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं है जितना तुम और तुम्हारे डैड समझते हैं। बिल्कुल अपने बाप पे गए। अच्छा छोड़े ना, आई एम सॉरी। आइंदा सड़कों पे फिरने वाले कुत्ते और बिल्ली की परवाह मत करना, अपनी मम्मा की परवाह करना, ओके? यस बॉस। अच्छा ये बताओ, वो बिल्ली का बच्चा जिंदा है या मर गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच गया। पहले मैं उसको वेट के पास लेकर गया, फिर उसकी मरहम पट्टी करवाई, और अभी ला के मैंने खान के हवाले कर दिया। व्हाट? तुम उस बिल्ली के बच्चे को घर ले आए हो? अरे मामा, और क्या करता मैं? व्हाट रबिश! तुम वाकई अपने डैड पे चले गए हो। इसीलिए मैं जैन की तारीफ करती हूँ। वो बिल्कुल मेरे जैसा है। उसकी तरबियत भी मैंने ही की है। वो कितना ओबीडियंट है। अरे मामा छोड़े ना, जाने दें। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अपना मूड अच्छा कर लें, मैं आ गया हूं ना। चुटकी में। चलो बेटा, आप चेंज करें और मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इस बूढ़ी घोड़ी का आज फोन कैसे आ गया? हाय फीफी डार्लिंग। Hi, Paras. How are you, baby? आई एम वेरी फाइन। और मेरा मिरर बताता है कि मैं अगले 30 साल तक तो बिल्कुल फाइन रहूंगी। Good. Then let's come to the point. मेरे पास अभी जैन बहादुर का फोन आया था, वही पॉलिटिशियन नूर बहादुर का बेटा। आई गॉट इट। उसने तुम्हें अप्रोच किया होगा और तुमने कहा होगा कि डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। तो और क्या कहती, नमाज पढ़कर हटी हूँ, प्लीज मेरे से ऐसी बात ना करना भैया। भैया नहीं, भांजा कहना चाहिए। 25 का भी नहीं होगा वो। ओह शट अप, आई एम जस्ट 39। शुक्र है तुमने इस महीने 4 साल का इजाफा कर लिया, वरना लास्ट बर्थडे तुमने 35 की मनाई है। तुम मुद्दे पर क्यों नहीं आती बेबी? यार जहर लगता है मुझे वो। He is not a decent guy, and also he's very irritating. Listen Paras, you're very new. तुम्हें रूल्स का भी पता नहीं है। मार्केट हमारी चॉइस पर नहीं चलती है, बल्कि हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। मगर वो मुझे पसंद नहीं। ओह पारस, लिसन बेबी, अगर कोई भयानक लग रहा है तो तुम्हारे भयानक कहने से उसका भयानक मन खत्म हो जाएगा। अलबत्ता उस भयानक को
تعریف کر کے اگر تمہارا والیٹ بھاری ہو جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہ اپنے دوستوں کو ساتھ رکھتا ہے. ڈونٹ وری، میں بات کروں گی نا. تو پھر میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تم پرفارمنس کے لیے ریڈی ہو. بٹ لسن، میں ان لوگوں کو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کروں گی اور فلم کا معاوضہ تم سے ہی لوں گی. ڈن، آئی ول پے یو. اوکے بائے. بائے. کیا کمال چیز ہے یار، تم کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ ایک منٹ. السلام علیکم زین صاحب. ہاں وعلیکم السلام. وہ میں مال لے کر آیا ہوں لیکن میں اندر نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. آخر ہماری بھی تو کوئی پرائیویسی ہے. اچھا تم ایک کام کرو، تم گیٹ پر ہی رکو، میں اسلم کو بھیجتا ہوں. اسلم، اسلم یار وہ ذرا گاڑی سے بیگ لے کے آؤ. مال چیک کر لو، بعد میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے نا یار. اب تو آپ یہ مجھے ڈرا رہے ہو. اپنا مال چیک کرو. ابے جانا یار، بعد میں بات کرتا ہوں. شاہ جی، اب ہمیں اپنے رشتے کے بارے میں تو سوچنا ہوگا. کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا؟ کیونکہ میں آپ کے نام پہ کوئی دھبا نہیں لگا سکتی. پھر اب خود بھی سیانی ہو گئی ہے اور وہ کہتی ہے مجھ سے ماما اگر آپ نے ان سے نکاح کیا ہوا ہے تو اس چیز کو یہ ڈکلیئر کریں، ورنہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ رات یہاں نہ آیا کریں. میں آپ کے لیے کافی لے آتی ہوں. جی بیٹا. جی ڈیڈ، وہ 20 کلو پہنچ گیا. تم نے چیک کیا؟ ابھی میرے فرینڈس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جاتے ہیں تو میں چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور جب تک میرا آدمی نہ آئے نا تم نہ آنا. ٹھیک ہے؟ اوکے ڈیڈ، بائے. کافی. تھینک یو. جی شاہ جی، میں نے آپ سے بات کہنی ہے بٹ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں. کیوں؟ کیا کہنا چاہتے؟ کیسے میں جیوں گی، کیسے رہوں گی آپ کے بغیر شاہ جی؟ چلو
मैं खुद भी ना तुमसे बिछड़ने का तस्वर नहीं कर सकता। मामा मेरा सुबह का मैं आ रही हूँ खुद। मैं आई। खुद मेरी बात सुनो। आइए मिस पारिस खान। लाइफ तो आप और भी ज्यादा हसीन लगती हैं। हेलो मिस्टर जैन। सारी बातें यहीं कर लेंगे या बैठने के लिए भी कहेंगे? प्लीज तशरीफ रखिए। फीफी ने तो मुझे बताया था कि आप मुझे फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट तो मैं आप पे जरूर कर देता अगर आप डायरेक्टर के कहने पर आ जाती तो। देखिए जैन, अब फोन तो दिन में 100 लोग करते हैं, मगर बंदा तो वहीं मूव करता है जहां पे कोई जान पहचान हो। तो अजनबियों के सामने ऐसी राय नहीं देनी चाहिए थी आपको। नाम बड़ा हो तो इंसल्ट करते वक्त सोच लेना चाहिए था। हाँ तो मैंने भी कौन सा आपके बारे में कोई बुरे रिमार्क्स दिए? छिछोरा हूं, शो ऑफ करता हूं, ये सब कहा था ना आपने मेरे बारे में। नो, नॉट एट ऑल। वो डायरेक्टर आपसे झूठ बोल रहा है, मैंने तो उससे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। फोन पर झूठ बोलना चाहिए था तो सच बोला, यहाँ सच बोलना चाहिए तो झूठ बोल रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो सब बातें मैंने कही हैं उस डायरेक्टर से? फोन पर डायरेक्टर बनकर बात करने वाला कोई और नहीं, मैं था। तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए था। मैंने खाना लगा दिए, आ जाओ खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। खुद ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, और देखो वो चले भी गए हैं बगैर मिले। आ रही है तुम्हें गाड़ी की आवाज? मैं चोरी कर रही हूँ? मैंने चोरी की है? मुंह से तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन तुम्हारा एक्ट जो है वो तो यूं लग रहा है जैसे तुमने माँ को कोई चोरी करते हुए पकड़ लिए। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि इनको दिन में बुलाया करें। खुल्द, वो मेरे शौहर है, उनका हक है मुझ पे, वो जब मर्जी आए और जब मर्जी जाए।
शोहर? तो ये शोहर आपसे दिन को मिलने क्यों नहीं आते? जहाँ अपनी बीवी को लेकर जाना होता है जरूरी, वहाँ आपको लेकर क्यों नहीं जाते? तस्वीरें वो फौजिया बेगम के साथ खिंचवाते हैं, आपके साथ तो सिर्फ वो बातें करने आते हैं, वो भी रात के अंधेरे में। खुल्द, ये निकाह मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से खुफिया रखा है ताकि तुम्हें सौतेले बाप का कॉम्प्लेक्स ना हो। ये निकाह आपने मेरी वजह से खुफिया नहीं रखा, बल्कि नूर बहादुर की वजह से रखा है, क्योंकि वो आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। डरते हैं वो अपनी बीवी से, प्यार तो वो अपनी बीवी से ही करते हैं, आप तो उनके लिए बस एक। खुल्द, चुप हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो माँ और बेटी में दरार पैदा कर दे। दरार? अभी तक जग रही हैं आप? बड़ी देर लगा दी आपने। सर, वो एक पार्टी मीटिंग में बहस छिड़ गई थी तो बात लंबी हो गई। खाना तो आप खा के ही आए हैं, तो क्या कॉफी भी पी आए हैं? खाने के बाद चाय का दौर तो चल ही जाता है। आप चाहें तो काफी आपके साथ बड़े शौक से पीना चाहूंगा मैं। उसी के परफ्यूम की खुशबू, आपके लिबासों की ये खुशबू मेरे लिए बदबू से कम नहीं। अब फौजिया, आज फिर सूंघ ली इसने सारा की खुशबू। हाँ, बड़ी देर तक इसकी बातों से बदबू आती रहेगी। मैं जा रही हूँ अब। श्योर? सुनिए मिस पारस खान, it was nice meeting you. I will see you soon. हेलो। हेलो सारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए, कैसे याद आई हमारी? हमने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को इजलास में इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। डोनेशन दे रहे हैं अच्छा खासा। अगर आप कहें तो इस्तकबालिया में आपका नाम डाल दूँ? अगर मैं चली जाती हूँ तो खुद मॉर्निंग शो करके लौटेगी, मुझे घर में नहीं देखेगी, फिर कॉलेज चली जाएगी, वापस आएगी तब भी नहीं देखेगी, तो इसका गुस्सा ज़रा धीमा हो जाएगा। सारा, आर यू देयर? जी, कोई भी हो, आप मेरा नाम डाल दें, मैं कंफर्म कर रही हूँ। चीफ गेस्ट हैं भी आपके जाने पहचाने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा सुनो, खुद का नाश्ता लगा दो जल्दी से, और हाँ अंडे भी बॉईल करके रखना। हाँ ठीक, अच्छा अब तुम जाओ। ओह, ये तो चैनल की गाड़ी आ गई, पता नहीं जागी भी है या नहीं। अब जगाने जाऊं तो फिर, खैर जगाना तो पड़ता ही है औलाद को। बता इज़्ज़ो मंतशा, बता ज़िल्लो मंतशा। कुलिया जब समझ आता है तो पता चलता है बहुत देर हो गई। तो इज्जत देने वाला है। जिल्लत तो बंदा खुद अपने गुनाहों की सजा के बदले तुझसे खुद लिखवाता है। सका से मेरा हसद मेरे सामने आ रहा है। हसद क्या है? एक धुएं जैसा। हसद करने वाले की जिंदगी इस धुएं से भर जाती है। सका की तरह लिबास पहने और या नहीं बना, लेकिन रिश्वत लेकर जहन्नम में तो बना होना मेरे मौला। तू कहता है रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, लेकिन तू ये भी तो कहता है मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ। मेरे दिल खैर, मेरे दिल खैर मेरे वाला। ये मेरा ठिकाना मुझसे मत छीनना। सखा के दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर दे मेरे वाला। मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दे। वो मेरी तरफ देख रही है और मैं तेरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम। देख ली आपकी सूरत, अब लाद दीजिए आप पर मसरूफियात का बोझ। सर आज आपकी 3 बजे बोरीवाला के साथ मीटिंग रख ली है। ये बोरीवाला से मीटिंग क्यों रखी है आपने? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत तंग कर रहा था और 2 दफ़ा पहले भी डिले हो चुकी है, और यतीम खाने के विज़िट के बाद आज ही आपके पास वक्त था। ठीक है, आगे बताओ। और सर दूसरी मीटिंग आपकी मिस रहीला फराज के साथ है। रहीला, ये कौन है? सर ये हकूक़ निस्वां की NGO हैं। हकूक़ निस्वां, पहले मुझसे पूछ लिया करो ना, फिर रखा करो मीटिंग। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। ओ बैठो बैठो। अनवर मियाँ पानी लेकर आइए। जी सर, मैं मंगवाता हूँ। हनीफ। अनवर मियाँ आप खुद पानी लेकर आइए। सर मैं अभी लेकर आता हूँ। सोना फार्म हाउस पर पहुंच गया है। 20 किलो है पूरा। कोई एतबारी समझ नहीं आ रहा तो आपको ही लेकर आना पड़ेगा। इस वक्त कौन है फार्म हाउस पे गोल्ड के साथ? जैन अपने दोस्तों के साथ। ठीक है डैड, वो एक्चुअली आज कॉलेज में आखिरी एग्ज़ाम है, क्यों ना मैं एग्ज़ाम देख के डायरेक्ट कॉलेज से ही चला जाऊँ वहाँ पर? ठीक है, और अगर इस दौरान कुछ समझ आ गई तो फ़ोन करके रोक दूंगा, वरना फिर तुम्हें ही लेकर आना पड़ेगा। कॉलेज कब जाओगे?
डैड मैं फ़िलहाल जॉगिंग पे जा रहा हूँ, जॉगिंग से आके ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर कॉलेज चला जाऊँगा, और कॉलेज से डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर फार्म हाउस पे। ठीक है, जॉगिंग से वापस आकर मेरी बात सुन लेना। जी ठीक है, See you. फोन पर झूठ बोलना चाहिए था तो सच बोला, यहाँ सच बोलना चाहिए तो झूठ बोल रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो सब बातें मैंने कही हैं उस डायरेक्टर से? फोन पर डायरेक्टर बनकर बात करने वाला कोई और नहीं, वही था। तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए था। शाबाश है, जवान की बच्ची सुबह सुबह वीडियो कॉल कर रही है। हेलो, ओए, देखा मेरे साथ क्या हुआ है? ये क्या हुआ तुझे? उस जलील इंसान ने अपनी औकात दिखाई है, उस नूर बहादुर के बेटे जैन बहादुर ने। उधर कहाँ पहुंच गई तू? फीफी ने भेजा था। फीफी की तो मैं बैंड बजा दूंगा। फीफी की नहीं, बल्कि उस नूर बहादुर के बेटे जैन बहादुर की बैंड बजवाएं। अबे, नूर बहादुर ने थोड़ी कुछ किया है, या वो भी था उधर? उसका बेटा जैन बहादुर कुत्ता है, वो कुत्ता। इसमें तो कोई शक नहीं है, पर जरा ठहर के कॉल कर लेती ना। क्या आप कह रहे हैं? वो तेरी भाभी, मेरा मतलब मेरी बीवी सोई हुई है, वो जाग जाए तो वो भी भौंकने लगती है। मैं सुबह जिस तरह 5 बजे ड्राइव करके आई हूं ना, मेरा दिल जानता है। मैं तो उसी टाइम कॉल करके आपको अपने जख्म दिखाना चाहती थी, लेकिन फिर अभी तक जाकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी। तो अपनी उस माँ की नींद खराब करनी थी ना, उस फीफी की। उसने फीफी को भी ट्रैप किया है, और इन जख्मों का बदला लेना फीफी के बस की बात नहीं है। और अगर प्यार मैं आपसे करती हूँ तो शिकायतें फीफी से क्यों करूँ? अच्छा ठीक है, मैं भी एसएचओ को फोन करता हूँ। कौन से इलाके का वाकया है? उसके फार्म हाउस का। ना 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 मेरी जान, ना रो, अब बेफिक्र हो जा और चैन से सो जा। देख मैं उसका क्या इलाज करता हूँ। कुट लगवाएं या नहीं? और अगर मुझसे प्यार करते हैं तो जैन बहादुर से हाथ जोड़कर माफी मंगवाएं। तो फोन रखेगी तो कुछ करूंगा ना। चल चल मेरा चलना, शाबाश। अच्छा मेरी एक बात तो और सुने। ओ भाई, सुबह सुबह का टाइम है, सोया हुआ उठाऊं, बंदे ने बाथरूम भी जाना होता है। आप भी ना। ओके बाय। इब्राहिम, जाओ खुद बाजी को जाके उठा लो। मुझे जगाने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मेरी चैनल की वैन आ गई है तो मैं जा रही हूँ। सी यू। सी यू। मैंने कहा था शाहजी, हमारा ताल्लुक आजमाइश तक पहुंच चुका है। अब ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी आजमाइश होगी। ये चंदा मांगने वालों को आप ना हमसे पूछकर टाइम दिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मगर इन एनजीओ वालों की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, और इलेक्शन से पहले आपका अच्छा खासा वोट बैंक बढ़ा सकते हैं ये। अनवर मियाँ, हम 500,000 वाला चंदा तो दे नहीं सकते। 50,000 से कम दिया तो क्या दिया, और अगर इससे कम देंगे तो वैल्यू बढ़ेगी तो नहीं ना, कम नहीं होगी। आप जानते हैं कि आजकल माली हालात खसारे में जा रहे हैं। मगर सर, ये जो खातून ख़ास तौर पर बुलाई हैं, इनके एनजीओज़ में एक से बढ़कर एक हसीन लड़की काम करती है। अनवर मियाँ,
फज्र की नमाज पढ़कर आए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे कामों की तरफ तवज्जो हम जरा कम ही देते हैं। मुकर्रब खान थोड़ा ही है। सर मैं इस हवाले से नहीं कह रहा था, मैं तो हवाले की वजह से कह रहा था। अब हवाले का काम आसान नहीं रहा। खुदा गारत करे इन कम अक्ल वालों को जिन्होंने मुखबरी करके सारे काम बिगाड़ दिए। मगर सर ये सोना रानी भी तो हवाले का काम कर रही है। सोना रानी है वो, जो कर बैठे कम है। ओके डैड, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। 5 मिनट रुक सकते? जी जी, व्हाई नॉट। असल में वो एक आदमी से मैंने बात की थी तो 10 मिनट का टाइम दिया था उसने मुझे। 5 मिनट गुजर गए हैं। 5 मिनट की बात है, कोई मसला तो नहीं है आपको? नो प्रॉब्लम एट ऑल डैड। ठीक। अनवर मियां, मैं आपसे कह रहा था, आइए जरा। देखिए, कुछ बातें बाहर के ही समझ जानी चाहिए। कुछ बातें करने की होती हैं, कुछ नहीं करने की होती हैं। हेलो, शबीर रिजवी बोल रहा हूँ, एएसपी रवात। जी बोलें। नूर बहादुर साहब, मुकर्रब खान ने आपके छोटे साहबजादे जैन बहादुर पर FIR काटने के लिए कहा है। व्हाट? FIR? वो भी बड़े खतरनाक केस में, यानी गैंग रेप में। कि आप क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मैं नूर बहादुर साहब का बड़ा बेटा बात कर रहा हूँ, सवी बहादुर। डैड ज़रा बिजी हैं, आप मुझे बता दें। जी, आपको भी जानता हूँ। मैं समझा नूर बहादुर साहब का नंबर है। मुकर्रब खान ने यही नंबर कहकर तो व्हाट्सएप किया था मुझे। हाँ जी, नंबर उन्हीं का है, मगर वो थोड़े से मसरूफ़ थे, इसलिए फ़ोन मैंने उठाया। आप मॉडल गर्ल पारिस को जानते हैं? नहीं। सुबह बखैर, जीते रहो। ये शकीला नजर नहीं आ रही। बेटा, उसके लास्ट सेमेस्टर का आज आखिरी पेपर था। रात देर तक पढ़ती रही होगी, सुबह देर से आँख खुली होगी। इसका मतलब है कि नाश्ता आज भी नहीं मिलेगा। सवी नूर बहादुर। ओह, देखिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। व्हाट डू यू मीन? मैं जैन की हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। गलती जैन ने की है तो शर्मिंदा भी उसी को होना चाहिए। देखें, जैन आपको फ़ोन करके सिर्फ माफ़ी मांगेगा, जबकि मैं आपको और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ।